Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in the lecture of power system, we are going to continue our discussion on the underground cable. In the last few lectures, we have discussed about the capacitance grading and what are the different methods of the grading by means of which we can obtain the uniform electrical stress along the cable. And in the another case, we discuss about if you want to obtain the non-uniform electrical stress, then what is the condition? How should be the placing of the dielectric must be employed into the cable so as to obtain the non-uniform electrical stress along the cable. All these things were discussed in the last few lecture. Right now in this particular lecture we are going to continue our discussion on the same topic of capacitance grading, but today we will come up with the new method of capacitance grading and the name of the method is इंटरशीथ ग्रेडिंग. क्या है? इंटरशीथ ग्रेडिंग. लेकिन सवाल ये आएगा आपके दिमाग में कि सर अपन इंटरशीथ ग्रेडिंग के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले अपन ने ऑलरेडी कैपेसिटेंस ग्रेडिंग के बारे में पढ़ा है. तो देखिए कैपेसिटेंस ग्रेडिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस है कि जिनकी वजह से अपन को इंटरशीथ ग्रेडिंग के लिए जाना पड़ता है. तो देखिए क्या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट कैपेसिटेंस ग्रेडिंग. तो लिखेगा, हेडिंग लिखेगा disadvantages of capacitance grading. Of what? Capacitance grading. ऑफ कैपेसिटेंस ग्रेडिंग के क्या डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या आ सकता है आपके पास. देखिए अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि द डाइलेक्ट्रिक which is having maximum permittivity and the maximum electric field intensity, the product of this one which is having the maximum value, it should be placed very close to the what conductor surface. And next to this particular placing of this dielectric and the maximum electric field intensity, another product of electric field intensity and the dielectric having maximum permittivity, it should be placed in the what after this particular conductor surface के बाद जो next आपका लेयर होगा उसके बाद अपन उसको रखते हैं. ऐसा अपने लास्ट इसमें डिस्कस किया था. अगर आप इसमें देखो तो देखो मैंने उसमें लिखा था कि एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4, in this way we were having the different kinds of dielectric, but as we are utilizing the different dielectrics, so definitely अगर ये अलग अलग dielectric है, जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था क्या कि as epsilon 1 is having the maximum permittivity as compared to epsilon 2 which is having the maximum permittivity as compared to what epsilon 3 which is having maximum permittivity in this way. तो जिस तरीके के अपन डायलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, one which is having maximum permittivity probably it may having the higher cost as compared to the what another one which is having the less permittivity. So from this we can conclude that the dielectric which is having maximum permittivity, it is costlier than the another dielectric which is costlier than what another dielectric. It means that in this particular method of capacitance grading we are going for the heterogeneous kind of dielectric. मतलब क्या अलग अलग टाइप के अपन डायलेक्ट्रिक यूज करने वाले, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कैसे वेरी होगी. अगर उसकी कॉस्ट वेरी होगी तो दिस विल नॉट बी एन इकोनॉमिकल ऑप्शन सो एज टू गो फॉर द कैपेसिटेंस ग्रेडिंग. अगर ऐसा होगा तो अपन को क्या होगा, दिस मेथड विल नॉट बी व्हाट इकोनॉमिकल. सो एज द डायलेक्ट्रिक या डायलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू या ऑफ डिफरेंट साइज एंड कॉस्ट, डिफरेंट साइज एंड कॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जो बड़ा होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, परमिटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. हैविंग एज द डायलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट साइज एंड कॉस्ट आर एम्प्लॉयड या आर इनकॉर्पोरेटेड it leads to an uneconomical option, इकोनॉमिकल कंडीशन कह सकते हैं या ऑप्शन कह सकते हैं, अनइकोनॉमिकल कंडीशन. ठीक है, ये उसका डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि इसका मतलब कि कॉस्टलियर होगा, क्योंकि ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होगा कि अपन उसके बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, अगर मैं सेकंड केस के बारे में बात करूं या सेकंड पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करूं तो देखिए अपन क्या ना, जो केबल में जो डायलेक्ट्रिक अपन प्लेस करने वाले, जैसे कि अपन का जो केबल का शेप था जिसके मैंने डिस्कस किया था बार बार आपके साथ. सपोज आपके पास कंडक्टर है, उसके बाद नेक्स्ट आउटर लेयर है, उसके बाद थर्ड उसका अगेन नेक्स्ट आउटर लेयर है, वो आपके पास सपोज लास्ट का एक शीट है, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, और इसको क्या ना मैंने ग्राउंड पर लगा रखा है. किसके मतलब शीट इज ऑलवेज एट व्हाट अर्थ पोटेंशियल. ठीक है, मैंने बोला था कि दोनों के बीच में मैं एक डायलेक्ट्रिक प्लेस करूंगा कि जिसकी परमिटिविटी क्या एप्सिलॉन 1, उसके बाद जो नेक्स्ट डायलेक्ट्रिक होगा उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 2, उसके बाद जो नेक्स्ट डायलेक्ट्रिक होगा उसकी परमिटिविटी क्या एप्सिलॉन 3. इस तरीके की मैं डिफरेंट टाइप्स का डायलेक्ट्रिक यूज करने वाला हूं. तो देखिए जैसे जैसे मतलब कि टाइम होते जाएगा उस तरीके से मतलब क्या ना, मतलब एज द टाइम विल पास अकॉर्डिंगली द क्वालिटी ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक विल डिटोरिएट, ड्यू टू विच इट मे लीड्स टू द व्हाट ब्रेकडाउन ऑफ द व्हाट इंसुलेशन या ब्रेकडाउन ऑफ द व्हाट डायलेक्ट्रिक. तो इसका मतलब क्या, एज द टाइम विल पास द क्वालिटी ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक का बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है, टू ब्लॉक
ब्लॉक द वोल्टेज, तो उसके ब्लॉक करने की जो वोल्टेज को ब्लॉक करने की जो कैपेसिटी, जो उसकी टेंडेंसी होगी, वो क्या होगा, टाइम के हिसाब से कम होती जाएगी। और एक लंबे समय के बाद ऐसा होगा कि हो सकता है कि वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या हो जाएगा, लीकेज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एज द टाइम विल पास, एज द टाइम विल पास, एज द टाइम will pass, the quality of dielectric, the quality of what dielectric will deteriorate, will deteriorate, which may eventually, मैं नहीं कह रहा, which will eventually lead to breakdown, लीड टू व्हाट, ब्रेकडाउन। तो देखिए अगर आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है भाई, अगर ये अल्टीमेटली अगर अपन के पास ब्रेकडाउन, तो देखिए भाई, सो इवेंचुअली इट विल लीड टू द व्हाट, ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के लिए लेके जाएगा तो इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ लीकेज करंट विच इज नॉट एन एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम द व्हाट डाइलेक्ट्रिक। अगर ऐसा होगा तो इसके लिए अपन को क्या है ना कि इस मेथड के लिए नहीं जा सकते, तो अपने पास जो नेक्स्ट अनदर मेथड है which we are going to learn in today's lecture, it is इंटरशीथ ग्रेडिंग। वो क्या है, इंटरशीथ ग्रेडिंग है भाई। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालेगा आप आज के लेक्चर के लिए कि जिसका नाम है नेक्स्ट मेथड ऑफ ग्रेडिंग ऑफ केबल इज इंटरशीथ ग्रेडिंग। क्या है, इंटरशीथ ग्रेडिंग। क्या है, इंटरशीथ ग्रेडिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है कि इंटरशीथ ग्रेडिंग का बेसिकली मतलब क्या होने वाला है। इंटरशीथ ग्रेडिंग जो बेटा, इसमें क्या होगा, जो आपके पास जो यहाँ पे जो अलग अलग लेयर थी, इसकी जगह पे अपन क्या है ना, मेटल के शीट यूज करने वाले। क्या है, मेटल शीट यूज करने वाले। इन दिस पर्टिकुलर लेयर वी आर गोइंग टू यूज एज अ लेयर, वी आर गोइंग टू यूज एज अ मेटल शीट। सिमिलरली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर गोना यूज व्हाट, क्या यूज करने वाले अपन, मेटल शीट यूज करने वाले। इसके लिए क्या है ना, अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन उसको हम इंटरशीथ ग्रेडिंग। ठीक है, मतलब क्या, जो लेयर्स होंगे लेयर के बीच में अपन मेटल यूज करने वाले, इसको मेटालिक इंटरशीथ ग्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे, उसको नाम दिया है इंटरशीथ ग्रेडिंग। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, इसमें एकदम सिंपल बात है कि अपन को जो देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए इसके पहले जो अपन ने जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी थी हर एक पॉइंट के लिए, कैसे लिखी थी, ये था अपने पास कंडक्टर के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद ये जो नेक्स्ट लेयर के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर एज R1। उसके बाद जो नेक्स्ट था उसको अपन ने नाम दिया था व्हाट, R2। उसके बाद जो नेक्स्ट था उसको अपन ने क्या नाम दिया था, इट वाज नथिंग बट व्हाट, कैपिटल R। इस तरीके से अपने नाम दिए थे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने बोला था कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगी केबल की जो वोल्टेज है मैं उसको नाम दे रहा हूँ V। इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगी उसको मैं नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ मैं इसको, सपोज इसको मैं V1 नाम देता हूँ, इसको मैं V2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या आपके पास जीरो पोटेंशियल पे, क्यों, क्योंकि केबल कहाँ पे है आपकी, जीरो पोटेंशियल पे। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो देखिए मैंने आपके पास जो एक दो आपको एक्सप्रेशन ड्रॉ फाइंड डेराइव करके दिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था इफ यू वांट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एक्सटेंट ऑन द केबल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ द व्हाट कंडक्टर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे आती है, कंडक्टर के सरफेस पे आती है। तो उसको अपन ने क्या लिखा था, V अपॉन व्हाट x इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट R। ये ऐसा अपन ने फाइंड किया था। अपन ने बोला था कि अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो उसके लिए दो पैरामीटर चेंज हो नहीं सकते। अगर छोटा कोई हो सकता है चेंज होने वाला, तो अपन ने उसको x बोला था। x इज व्हाट, x is a distance at which we want to estimate the electric field intensity। और अगर x का वैल्यू मिनिमम होगा तो E क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अपन ने बोला था कि x is equals to what, स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r मतलब क्या, कंडक्टर का सरफेस। तो कंडक्टर के सरफेस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। उसके बाद मैंने बोला था कि इफ यू वांट टू मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन यू विल ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम व्हेन x is what, मैक्सिमम, एंड x is मैक्सिमम व्हेन x is equals to कैपिटल R। मतलब क्या, जो आउटर सरफेस, जो आउटर डायमीटर, जो आउटर रेडाई हो गया आपके पास जो कंडक्टर की, उसको अपन बोलते थे कैपिटल R। ये था आपके पास V अपॉन व्हाट, कैपिटल R इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट, स्मॉल r। तो इस तरीके से अपन इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, इसके पहले के लेक्चर्स में अपन ने सब चीजें डिस्कस करी है। लेकिन मुझे अभी देखने एक सिंपल बात आपको पूछनी है कि अगर सपोज मैंने बोला कि मेरे पास जो कंडक्टर का सरफेस है, ध्यान से सुना इसको। ठीक है, जो कंडक्टर का सरफेस है उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे कंडक्टर के सरफेस पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इसके बराबर आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने पूछा कि आपको ये वाला जो सपोज आपके पास जो अनदर लेयर है, उसको सपोज अगर मैं दूसरा बाहर का कंडक्टर कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा मान के चलते, तो जो नेक्स्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो इस सरफेस पे मिलेगी। उसके आगे जो नेक्स्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। उसके आगे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी अपन को वो यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं पूछूं आपको कि मेरे पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी नेक्स्ट, तो उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ Emax2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो वो कहाँ पे मिलने वाली है आपके पास, V अपॉन R1 इंटू व्हाट ln ऑफ क्या लिखते हैं अपन उसको, R1, सॉरी ये आएगा R2 अपॉन R ना, ये आएगा R2 अपॉन व्हाट R।
इस तरीके से अपन लिखते थे उसको। देखिए भाई हेडिंग डालेगा आज के लेक्चर के लिए, क्या है आपके पास जो डिस्कस करने वाला अपन आज का लेक्चर, इट इज इंटरशीट ग्रेडिंग। क्या है? इंटरशीट ग्रेडिंग। इंटरशीट ग्रेडिंग। तो देखिए इंटरशीट ग्रेडिंग का बेसिकली मतलब क्या है? इंटरशीट ग्रेडिंग का मतलब क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस इन बिटवीन कोर एंड शीट, इन दोनों के बीच में अपन मेटालिक शीट पे प्लेस करने वाले हैं, इसके लिए उसको नाम दिया गया इंटरशीट। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग, इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग, इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग, इंटरशीट ग्रेडिंग, we are going to place metallic sheet in between core and sheet। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग, ये डेफिनेशन नहीं है, बस उसका मतलब है बेसिकली वी प्लेस, इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग वी प्लेस मेटालिक शीट्स, मेटालिक शीट्स। ठीक है, आई थिंक ये डबल एल है, देख लेना एक बार स्पेलिंग। मेटालिक शीट्स इन बिटवीन कोर एंड शीट, इन बिटवीन व्हाट? कोर एंड शीट। ठीक है, इन बिटवीन कोर एंड शीट वी आर गोइंग टू प्लेस व्हाट? मेटालिक शीट। बात समझ में आ गई? वेयर एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग इज दैट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज अ होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक। मतलब क्या? अपन एक ही काइंड के मतलब एक ही टाइप के डाइलेक्ट्रिक यूज करने वाले हैं। वेयर एज इन केस ऑफ द व्हाट? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक यूज करने वाले थे अपन, इसके लिए उसको अपन ने बोला था क्या? हेट्रोजेनियस ग्रेडिंग बोला था उसमें। क्यों? क्योंकि जो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज करने वाले तो इट वाज व्हाट? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स were being used, and that's why it was costlier and उसकी साइज भी अलग अलग लगती थी। ठीक है, इस तरीके से अपन ने वहां पर डिस्कस किया था। बट इन केस ऑफ द व्हाट? इंटरशीट ग्रेडिंग, होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड। क्या यूज किया जाता है? होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं अपन इसके केस में। तो लिख दीजिएगा उसमें, इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग, इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग, इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग we use homogeneous dielectric, we use what? Homogeneous डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अपन होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक यूज करने वाले भाई। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए जो मैं लिख रहा हूं अभी, मैं उसका जो डेरिवेशन वगैरह जो डिस्कस करूंगा उसके बारे, उसके लिए तो थोड़ा अच्छे से देखना। फिर भी मैं एक बार चाहे तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि अपन बेसिकली उसमें करते क्या है। तो देखिए आपके पास क्या था? ये मेन कंडक्टर था, आपको अगर याद आ रहा तो ये कंडक्टर, ठीक है, उसका रेडियस कितना था? आर, ऐसा बोलते थे अपन उसको। उसके बाद उसके बाहर एक लेयर होता था, क्या होता था? एक लेयर होता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन क्या था ना, पेपर इंसुलेशन वगैरह ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के अपन क्या करते थे, मतलब जो लेयर लगाते थे कि उसमें अलग अलग लेयर लगाते थे। यहाँ पे अपन उन दोनों लेयर के बीच में मेटालिक शीट यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए अपन उसको बोलने क्या वाले? इंटरशीट ग्रेडिंग बोलने वाले उसको। इसलिए अपन क्या बोलने वाले उसको? इंटरशीट ग्रेडिंग बोलने वाले भाई। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से भाई। तो देखिए ये आर, उसके बाद ये जो होगा आपके पास दिस इज R1, उसके बाद ये जो होगा आपके पास दिस इज व्हाट? R2, और ये जो होगा आपके पास इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल आर। इसको क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल आर बोलने वाले। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए इसमें एक छोटा सा रेशो होगा, उस रेशो को अपन यूज करेंगे। मतलब मैं बस उसको नाम दे देता हूँ क्योंकि वही मुझे आगे लगने वाला है, इसके लिए मैं इसको पहले डिफाइन करके दे देता हूँ आपको। देखिए क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू R2 अपॉन वाट? R1 विच इज इक्वल्स टू वाट? कैपिटल आर अपॉन वाट? R2। इसको मैं बोलने वाला हूँ अल्फा, क्योंकि अपन ये सब चीज मतलब कि हर एक जगह पे अपन को लगने वाले, जब भी अपन चाहे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे या उसका वोल्टेज लिखे, हर एक जगह पे अपन को ln ऑफ R1 अपॉन R ऐसा कुछ लगता था, तो उसको मैं डायरेक्टली नाम दे दिया अल्फा, क्योंकि ये सेम चीज मुझे वहां पे आगे लगने वाली। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि इसके पहले की वीडियो में कि जब भी आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाती है और उसमें से मल्टीपल लेयर्स अगर आपकी केबल में अवेलेबल है, तो अपन बोलते थे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ द व्हाट? कंडक्टर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे ऑकर होती है? कंडक्टर के सरफेस पे। और मिनिमम कहां पे ऑकर होती है? शीट के ऊपर, क्योंकि शीट कहां पे होती है? जीरो पोटेंशियल पे होती है। ठीक है भाई, शीट कहां पे होती है आपकी? जीरो पोटेंशियल पे होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर मैं यहां से लिख दूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? E max is equals to what? V अपॉन x लिखते थे, ln ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r, ऐसा अपन लिखते थे। लेकिन उसमें अपन क्या डायरेक्टली कंडक्टर और शीट इन दोनों की बात करते थे, उसमें से मल्टीपल लेयर्स की बात नहीं करते थे अपन। ठीक है, तो उसमें सिर्फ दो ही केसेस मैंने आपको डिराइव करके दिया था, एक मिनिमम के लिए, एक मैक्सिमम के लिए। तो भले ही उसमें कितना भी हो जाए फिर भी बाद में वही आ जाएगा केस, अगर आप उसमें मल्टीपल लेयर भी ले लोगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो तो शीट पे आने वाला, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो तो कंडक्टर पे सरफेस पे आने वाला है। ठीक है, तो उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। ई मैक्स विल ऑलवेज ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इसलिए ये होगा ln ऑफ, ये r होगा
होगा यहाँ पे, और ये होगा कैपिटल आर अपॉन व्हाट स्मॉल आर, इस तरीके से। और अगर आप ई मेन के लिए जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर होगा, बस बाकी जो एक्सप्रेशन होगा एज इट इज होगा। बात समझ में आ गई इस तरीके से भाई, ठीक है। देखिए इसके पहले अपन ने बात की थी तो उसमें अपन ने एक बात और डिस्कस करी थी कि क्या अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होगी किसी भी आर्बिट्री डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर्बिट्री डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट v अपॉन x इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R बाय R, ऐसा मैंने बोला था अगर आपको याद आ रहा होगा तो। बेटा मैंने ऐसे बोला था आपको, ठीक है, इस तरीके से अपने बोला था। और v वाज नथिंग बट व्हाट, इट वाज अप्लाइड पोटेंशियल, और जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने वहां पे अपन क्या कर देते थे, x लिख देते थे, मतलब x की जगह पे उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को लिख देते थे, ठीक है, इस तरीके से। अब सपोज मैंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो मैंने लिखा ई मैक्स इज इक्वल्स टू वी अपॉन व्हाट स्मॉल आर इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल आर बाय आर, ऐसा मैं उसमें बोलता था। अब अगर सपोज मैं उसमें इंटरशीथ ग्रेडिंग अप्लाई नहीं करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं उसमें, अगर सपोज मैं ग्रेडिंग अप्लाई नहीं करता, नॉर्मल कंडक्टर भी ले लेता हूं या नॉर्मल जो अपने पास केबल होती है उस केबल की तरह भी अगर सपोज मैं बात कर लेता हूं, तो उस केबल की तरह भी अगर मैंने बात किया कि सपोज मेरे पास नॉर्मल कंडक्टर है कि जिसकी रेडियस कितनी है आर है, और ये मेरे पास एक बाहर एक शीट है, मैं डायरेक्टली उसको बोल दे रहा हूँ क्या है, मेरे पास बाहर एक शीट है कि जिसकी रेडियस कितनी कैपिटल आर है, क्या है कैपिटल ये आर, और मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि एक अल्टीमेट लेयर है और इन दोनों के बीच में क्या है इंसुलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या सिर्फ इंसुलेशन है, या जो भी कुछ अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक वगैरह रखा है वो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। एवरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल बट एवरी इंसुलेटिंग मटेरियल इज नॉट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा है ऐसा अपन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपके पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, ई मैक्स इज इक्वल्स टू ये होता है v अपॉन व्हाट स्मॉल r इंटू व्हाट कैपिटल R बाय R, ऐसा अपन वो लिखते हैं भाई, ठीक है, इस तरीके से अपन उसको लिखते हैं। अब मैंने बोला कि सपोज अगर मैंने उसमें कुछ भी मतलब कि इन दोनों के बीच में सिर्फ मैंने क्या लिया, एक मेन कंडक्टर लिया और उसके बाहर क्या ले लिया, मैंने एक इंटरशीथ ले लिया, ठीक है, इतना ही ले लिया। भले आप उसमें कितने भी मतलब कि लेयर लगे होते नहीं भी लगे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मुझे ना इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना है, जो आगे वाली जो चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है उसके लिए। तो उसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में, एक देखिए इसमें इंटरशीथ ग्रेडिंग वेडिंग मैंने कुछ लगाया नहीं, आपने देखा कि मतलब इसमें कोई मैंने शीट वगैरह लगाई है, बिल्कुल नहीं, मेन कंडक्टर और इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सॉरी और एक क्या है उसके ऊपर एक कवरिंग है, या कह सकते हैं कि उसके ऊपर इंसुलेशन है, केबल के ऊपर सिर्फ इंसुलेशन, बाकी कुछ नहीं है, ग्रेडिंग वगैरह मैंने यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं करी है, ठीक है। तो चाहे तो आप उसको नाम भी दीजिएगा विदाउट ग्रेडिंग, क्या नाम दीजिएगा आप उसको, विदाउट ग्रेडिंग देखिएगा। विदाउट ग्रेडिंग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है वो देख लीजिएगा, और विद ग्रेडिंग कितनी आती है वो अपन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो विदाउट ग्रेडिंग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास कितनी आने वाली है, ठीक है। मैं इस एक्सप्रेशन को देखिए थोड़ा किस तरीके से, क्योंकि मुझे मतलब दोनों को कंपेयर करने के लिए थोड़ा उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो उसको मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, v अपॉन आर इंटू वॉट ln ऑफ जो कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय R2, ऐसा लिख सकता हूं मैं, कैसे, मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, ऐसा लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R। क्या ऐसा लिखा था आपको, किस कोई दिक्कत किसी में? बस मैंने क्या किया मैथमेटिकली, बस जो चीजें करते बस मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी है, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है R2 को एडजस्ट किया हो, और किसको एडजस्ट किया मैंने, R1 को एडजस्ट किया, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देखिए ये R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यू विल गेट ओनली R बाय R विच इज नथिंग बट व्हाट ln ऑफ R बाय R, ये मिलने वाला, ठीक है। बस मैंने उसको वैसा लिखा है क्योंकि मुझे उसको कंपेयर करना है विथ ग्रेडिंग के साथ, ठीक है। अगर ये आपके पास इस तरीके का चीज है तो भाई मुझे एक बात बोलेगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ v अपॉन व्हाट R इंटू ln ऑफ। अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखें तो देखिए आपको एक बात यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती होगी, क्या मैंने जो स्टार्टिंग में जो आपके लिए डिफाइन करके दिया था, क्या डिफाइन करके दिया था मैंने, स्मॉल r1 अपॉन r इक्वल्स टू r2 अपॉन r1 विच इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन r2 विच इज नथिंग बट व्हाट अल्फा, ऐसा मैंने डिफाइन करके दिया था आपको, बिल्कुल ठीक है। तो बस मैं यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। तो देखिए आप मैं लिख सकता हूँ मैं कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r2 इज नथिंग बट अल्फा मल्टीप्लाई बाय व्हाट अल्फा, ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो देखिए बेटा ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट v अपॉन r इंटू व्हाट ln ऑफ अल्फा क्यूब, ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर ये ऐसा बन जाएगा तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या v अपॉन व्हाट 3 इंटू r मत लिखो उसका ऐसा, क्योंकि वो परमिटिविटी की तरह लग जाएगा, एप्सिलॉन की तरह लगेगा, इसको मैं लिखता हूँ R इंटू व्हाट ln ऑफ अल्फा, ऐसा लिखो तो किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। बस नॉर्मल मैंने क्या है जो लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ऑफ a टू द पावर b, तो b आगे आ जाता है, b इंटू लॉग ऑफ a ऐसा होता है, इसके लिए बस मैंने उसको ऐसा लिखा है, लॉग a जो क्यूब की पावर है, जो अल्फा की पावर है उसको मैंने बस आगे लेके आया, बाकी कुछ नहीं, लॉगरिथम का बेसिक रूल मैंने अप्लाई किया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ मेरे पास, विदाउट ग्रेडिंग, मैंने ग्रेडिंग ना अप्लाई करते हुए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मुझे जो देखने के लिए मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई, वो देखने के लिए मिल रहा है मेरे पास यहाँ पे ई मैक्स इज इक्वल्स टू, क्या देखने के लिए मिल रहा है, ई मैक्स इज इक्वल्स टू v अपॉन 3 इंटू r इंटू व्हाट ln ऑफ अल्फा, ये आ रहा है मेरे पास क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज ऑकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विदाउट ग्रेडिंग,
विदाउट ग्रेडिंग इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है। अब मुझे ये देखना है अल्टीमेटली कि भाई जब मैं उसमें इंटरशीथ ग्रेडिंग जब अप्लाई करूंगा तो क्या पॉसिबल है क्या कि उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है उस स्ट्रेस को मैं कम कर पाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेडिंग का मतलब तो यही ना। एक तो अपन इससे पहले जब ग्रेडिंग करी थी तो अपन ने उसमें क्या किया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस लाने की कोशिश की थी या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस लाने की कोशिश की थी, अपने दो ही उसमें काम किए थे, ठीक है। तो अपन देखिए अगर अपन उसके ऊपर ग्रेडिंग अप्लाई करके देखें तो कुछ हो सकता है क्या, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप हेडिंग डालेगा विदाउट ग्रेडिंग के बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका विथ ग्रेडिंग। क्या होगा नेक्स्ट हेडिंग? विथ ग्रेडिंग, विथ ग्रेडिंग, ठीक है, इस तरीके से। अब ग्रेडिंग जब मैं करूंगा तो देखिए जब मैं ग्रेडिंग करने वाला हूं तो देखिए ग्रेडिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ग्रेडिंग के लिए देखिए आपके पास क्या है ना, मैंने यहाँ पे एक मेटालिक शीट मैंने मेटालिक शीट यूज कर रखी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी उसको मैं नाम दे रहा हूँ V, ठीक है। ये जो सेकंड वाला होगा उसको नाम दे रहा हूं मैं V2 और ये जो होगा उसको नाम दे रहा हूं मैं V1 और इसको नाम दे रहा हूं मैं व्हाट, जीरो पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगी नहीं तो जीरो पे होगा। दिस वन विल बी एट V1 पोटेंशियल, दिस वन विल बी एट व्हाट V2 पोटेंशियल, दिस वन विल बी एट व्हाट V पोटेंशियल, ठीक है। डायलेक्ट्रिक सभी जगह पे कैसा है, सेम है, क्योंकि मैंने होमोजेनियस डायलेक्ट्रिक यूज किया है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइएगा जो मैं बोल रहा हूँ क्या सही है गलत है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आएगी क्या वो ये हो सकती है क्या, E इज इक्वल्स टू V अपॉन व्हाट R इंटू ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r। क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आएगी वो यही होगी? बिल्कुल भाई यही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सपोज अगर मैंने बोला कि जो V2 होगा, V2 पे जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आएगी वहां पे क्या हो जाएगा, ये V2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा आपके पास ये R की जगह पे क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, ठीक है। ये V1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, यही होने वाला है, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से होने वाला है। तो सपोज अगर मैंने पूछा आपको कि कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आएगी यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आएगा इसका जो वोल्टेज डिफरेंस लिखा जाएगा, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस V को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, V माइनस V2 ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ? अरे भाई क्यों नहीं लिख सकता हूँ? दिस V इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट पोटेंशियल। और आप देख सकते हो कि ये R नहीं आएगा, ये कैपिटल स्मॉल R1 आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, ठीक है। तो देखिए ये क्या आएगा, स्मॉल R1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V माइनस V2, इस तरीके से आ जाएगा भाई, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इन दोनों के बीच के लिए जब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी लिखूंगा और इन दोनों के लिए जब मैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी लिखूंगा तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय व्हाट, किसके लिए लिख एट द मैक्सिमम लिख रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम कहां पे आएगी, इसके कंडक्टर के सरफेस पे आएगी और मिनिमम यहां पे आएगी, ठीक है। तो क्या होगा भाई ये होगा आपके पास R1 इंटू व्हाट ln ऑफ R2 अपॉन व्हाट R1। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है, इस तरीके से भाई बहुत ही आसान है, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आएगी तो इसके लिए देखिए जो आउटर रेडियस मतलब क्या, उसके लिए जो मेन कंडक्टर होगा ये कंडक्टर का सरफेस होगा इस लेयर के लिए अगर अपन सोचे, और आउटर जो होगा वो ये होगा उसके लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। तो ये होगा E इज इक्वल्स टू व्हाट, E इज इक्वल्स टू V अपॉन ये क्या है, V1 है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय व्हाट, उसकी कंडक्टर के सरफेस पे देख रहे हो तो ये आ जाएगा R2 इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r2, इस तरीके से। दिस इज नथिंग बट व्हाट V1 अपॉन R2 इंटू ln ऑफ कैपिटल R बाय व्हाट स्मॉल r2, इस तरीके से। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। देखिए मैंने क्या बोला था, इसके पहले अपने जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या डिराइव किया था, E इज इक्वल्स टू व्हाट V अपॉन x इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R बाय व्हाट R, इस तरीके से अपने बोला था। ये कैपिटल R क्या था, उसका आउटर रेडियस था, और स्मॉल r क्या था, उसका इनर रेडियस बोल सकते हैं, कंडक्टर का रेडियस बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने कंसिडर किया कि मुझे इन दोनों के लिए लेना है, मुझे क्या लेना है, इन दोनों के लिए लेना है। फिलहाल इन सबके बारे में छोड़ दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, जब मैं इस कंडक्टर के लिए बात करूंगा तो इस कंडक्टर का जो रेडियस होगा वो स्मॉल r होगा, और उसकी जो आउटर रेडियस होगी वो क्या होगी, मेरे पास आउटर रेडियस क्या होगी, आउटर रेडियस होगी R1। क्या होगी आउटर रेडियस R1? इसका मतलब क्या, इसके लिए अगर मैं लिखूं, इन दोनों के लिए अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे R इज इक्वल टू व्हाट R1 आ जाएगा, और स्मॉल r जो होगा स्मॉल r के बराबर होगा भाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसके लिए अगर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर लिखनी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे आएगी, ये दो ही लेयर अगर है तो उसमें मैक्सिमम आएगी कंडक्टर के सरफेस पे, आ रही है, मतलब जो उसमें जो डिस्टेंस होगा x, दैट x विल बी नथिंग बट व्हाट, x विल बी नथिंग बट व्हाट r। तो x जो होगा वो क्या होगा, r के बराबर होगा। ठीक है, x किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। बस मैंने वही लिखा है, फिर उसमें चेंज कर दो, दिस विल बी व्हाट R1, और ये क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट R बनेगा भाई। बात समझ में आ गई? ठीक है। सिमिलरली जब मैं इन दो इसके लिए सोच रहा हूं, इन दो लेयर्स के लिए सोच रहा हूं, तो मतलब क्या, ये मेन कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, उसकी आउटर लेयर की तरह एक्ट करेगा। ये जो मेन कंडक्टर है तो उसका रेडियस कितना है R1, जो आउटर रेडियस है उसकी क्या होगी R2। तो बस वही लिखा है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो आएगा भाई इन दोनों के बीच में। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसके लिए लिखूंगा, इस कंडक्टर के लिए, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो आएगा फिर वहां पे V माइनस V2 आएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से मैंने लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला है, मैंने अगर बोला है कि मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे क्या बोल रहा हूं मैं,
नाउ इफ आई वांट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आप लोग गलती कर दोगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं तो इसका पूरा समझने का कोई मतलब नहीं बनता। फॉर ऑब्टेन, सपोज टू ऑब्टेन, सॉरी लिख देता हूं मैं, टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेस, देखिए अगर मुझे वो ऑब्टेन करना होगा तो क्या होगा, ई मैक्स 1 इक्वल्स टू ई मैक्स 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ई मैक्स 3, जो भी कुछ होगा, जो भी नाम दिए होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ई मैक्स 1 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, V माइनस V2, ऐसा मैंने उसको बोला था, डिवाइडेड बाय ये क्या था आपके पास, R इंटू ln ऑफ क्या था, R1 अपॉन व्हाट R, इस तरीके से था। दिस वाज इक्वल्स टू, इसको R1 लिख दो, ठीक है, दिस वाज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन R1 into what ln of R2 upon what R1, this which is equals to V1 minus 0 upon what R2 into what ln of capital R divided by small r2, इस तरीके से था। V माइनस 0 को मैं V लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से अपने उसको लिखा था भाई। क्या किसी को इसमें दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक बात थोड़ी सी अगर आप उसमें देखोगे तो आपको एक बात देखने के लिए मिल रही है कि तो जो R1 अपॉन R होता है, जो R2 अपॉन R होता है और जो कैपिटल R अपॉन R2 होता है, इसको मैंने क्या नाम लिखा था, अल्फा लिखा था कि नहीं लिखा था? देखिए आप यहाँ पे देखिएगा एक बार, ठीक है, मैंने क्या लिखा है उसको, अल्फा लिखा है, R1 बाय R इक्वल्स टू R2 बाय R1 इक्वल्स टू व्हाट कैपिटल R बाय R2, इसको मैंने अल्फा लिखा था। तो सपोज अगर मैं इन सभी जगह पे अगर अल्फा लिख देता हूं तो देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भैया, एक्सप्रेशन लिखा जाएगा V माइनस V2 अपॉन व्हाट R इंटू व्हाट ln ऑफ अल्फा which is equals to what V2 minus V1 upon what R1 into what ln of alpha, this is equals to what V upon R2 into what ln of alpha। क्या आप में से सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, V है V1 है, सॉरी ये V1 आएगा, ठीक है, V1 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए क्या कैंसिल होगा, यहाँ से ln ऑफ अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, सभी जगह पे सेम है। जब आप दोनों को किसी को भी अगर इक्वेट करोगे तो वहां से ln ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो आपके पास जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन आएगी, दिस विल बी व्हाट V माइनस V2 अपॉन व्हाट R which is equals to what V2 minus V1 upon what R1, this is equals to what V1 divided by what R2। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर होगा तो मैं आपको उसको आगे सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई जो एक्सप्रेशन मैंने वहां पे लिखा है अभी V माइनस V2 के बारे में वो या V2 माइनस V1 के बारे में, वो मैं वहां पे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन के लिए थोड़ी उसकी दिक्कत आएगी, वहां पे बार बार देखने के लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए मैंने वहां पे जो लिखा है V माइनस V2 upon R is equals to what V2 minus V1 upon R1 which is equals to what V1 upon what R2, ऐसा अपन ने लिखा है, ठीक है भाई, इस तरीके से अपन उसको लिखा था। अब अगर आप खुद इसमें सोचे तो देखिए आपको एक बात देखने के लिए मिल रही होगी यहाँ पे, क्या कि अगर सपोज ये तीनों अगर इक्वल है तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को पहले मैं इक्वेट कर लेता हूँ, किनको, इन दोनों को मैं इक्वेट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक बात आपको याद रहे कि मैंने वहां पे एक बात लिखी थी, मैं यहाँ पे उसको रब कर दिया, क्या मैंने लिखा था R1 अपॉन R इज इक्वल्स टू व्हाट R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू व्हाट कैपिटल R बाय R2, इनको मैंने क्या लिखा था, अल्फा लिखा था, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा भाई कि V2 माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू व्हाट V1 अपॉन व्हाट R2, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं V1 को इन टर्म्स ऑफ V2 उसका वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखिए कैसे आएगा, अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि R2 इंटू व्हाट V2 माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू व्हाट V1, इस तरीके से है वो। तो अगर मुझे V1 चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट V2 तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, R2 माइनस R2 V2 माइनस R2 इंटू V1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू V1, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको अगर मैं इधर लिखेगा तो V1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू V2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या आपको इतना क्लियर है भाई? ठीक है, मुझे बता दीजिएगा एक बार, ठीक है, क्लियर है इतना? ओके भाई, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, V1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2 निकाल लिया। अब मैं थोड़ा इसको और छोटा करना चाहता हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं R1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, किसको, डिनोमिनेटर से मैं R1 को कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं डिनोमिनेटर से अगर R1 को कॉमन ले लूँ तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, इसको कॉमन ले लिया, बनेगा R1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन व्हाट R1, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। और थोड़ा उसको अच्छे से लिखो तो क्या लिखा जाएगा, R2 अपॉन व्हाट R1 इंटू V2 अपॉन व्हाट 1 प्लस R2 बाय R1, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलेगा R2 अपन R1 इसको मैं अल्फा लिख सकता हूँ, R2 अपन R1 को अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा लिख सकता हूँ तो ऐसा लिखा जाएगा 1 प्लस V2 अपॉन व्हाट, सॉरी अल्फा इंटू V2 अपॉन व्हाट 1 प्लस अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो भैया क्या बनेगा, V1 का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट V2, V1 का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट V2। बात समझ में आ गई? देखिए भाई मैंने जैसे कि अभी क्या किया, V1 का वैल्यू फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ V2 एंड अल्फा,
ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा और वहां से मैं फाइंड करूंगा V2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन के टाइम पे क्या आएगा, ये आएगा V माइनस V2 अपॉन R इज इक्वल्स टू V1 बाय व्हाट R2, V1 बाय व्हाट R2। और आपने V1 का वैल्यू फाइंड किया है, क्या है V1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2, दिस इज अल्फा V2 अपॉन व्हाट 1 प्लस अल्फा। तो ये लिखा जाएगा आपके पास, अल्फा का वैल्यू लिख दो पहले, ये 1 बाय R2 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है आपके पास, इट इज अल्फा इंटू V2 अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन व्हाट 1 प्लस अल्फा, इस तरीके से आपके पास। ठीक है, तो मैं इन दोनों को अभी क्या करूंगा, अभी कंपेयर करने वाला हूं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो देखिए क्या लिखा जाएगा, दिस विल बी V माइनस V2 अपॉन R इक्वल्स टू व्हाट अल्फा इंटू V2 अपॉन R2 इंटू व्हाट 1 प्लस अल्फा अपॉन व्हाट R2 इंटू 1 प्लस अल्फा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है V2 इन टर्म्स ऑफ व्हाट V2 को इन टर्म्स ऑफ V फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा आपके पास, अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखो तो एक ये बन जाएगा R2 इंटू व्हाट 1 प्लस अल्फा इंटू V माइनस V2 इज इक्वल्स टू व्हाट R इंटू अल्फा इंटू व्हाट V2, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास, R2 को मैं थोड़ा बाजू में रखता हूँ फिलहाल, ये बनेगा क्या 1 प्लस अल्फा इंटू V और ये बनेगा आपके पास 1 प्लस अल्फा इंटू V2 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू R इंटू व्हाट V2, सॉरी ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू V, ठीक है, इक्वल्स टू R2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू V2 प्लस अल्फा इंटू R इंटू व्हाट V2, अल्फा इंटू R इंटू व्हाट V2, इस तरीके से बनेगा अल्फा इंटू R इंटू व्हाट V2, ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, V2 को कॉमन निकाल लो। तो अगर V2 को कॉमन निकाल लिया तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, V2 को कॉमन निकालने के बाद ये बनेगा 1 प्लस अल्फा इंटू ये बनेगा R2 प्लस व्हाट अल्फा इंटू R प्लस व्हाट अल्फा इंटू R इज इक्वल्स टू V2, तो ये बनेगा R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू व्हाट V, इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए जो R भी नजर आ रहा है यहाँ पे और ये भी नजर आ रहा है, तो देखिए उसको किस तरीके से अपन एलिमिनेट कर सकते हैं उस R को। अगर उस R को एलिमिनेट करना है तो थोड़ा अपने पास देखना सोचना पड़ेगा, कैसे सोचेंगे। क्या है ना कि अगर सपोज मैं इस R2 को अगर कॉमन ले लूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस R2 को अगर सपोज मैं कॉमन ले लूँ तो थोड़ा देखिए एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे, R2 को सपोज अगर कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू व्हाट V, ये आएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अगर मैं R2 को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा R2 इंटू V2 1 प्लस अल्फा, R2 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू R अपॉन व्हाट R2, ये इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो R2 से ये R2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बनेगा 1 प्लस अल्फा इंटू V इज इक्वल्स टू V2 इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू R अपॉन R2, क्या आ रहा है, R अपॉन R2, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं लिखता हूँ क्योंकि उसको भी मुझे रिमूव करना है, तो देखिए मैं थोड़ा इसमें दिमाग लगाता हूँ। क्या ना कि R अपॉन R2 को देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, R अपॉन R2, इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये R अपॉन व्हाट R1 इंटू R1 अपॉन व्हाट R2। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा क्या है, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए R1 अपॉन R इक्वल्स टू अल्फा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अल्फा 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू व्हाट R अपॉन R1, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, R2 अपॉन R लिख सकता हूँ। भाई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आसानी से लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, R में क्या करने वाला हूँ, R में मैं R1 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, तो ये लिखा जाएगा 1 बाय अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये जो होगा मेरे पास, ये क्या बनेगा बेटा, ये होगा आपके पास अल्फा इंटू R बाय R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, अल्फा स्क्वायर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर अल्फा स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखिए ना इसका आएगा 1 बाय अल्फा, इसका आएगा 1 बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज नथिंग बट 1 बाय अल्फा स्क्वायर, तो एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो एक क्या होगा, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 1 बाय अल्फा ओनली। ठीक है, अगर आपने इसको इतना लिख दिया तो देखिए एक्सप्रेशन और भी बहुत छोटी हो गई, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू V इंटू व्हाट V2 इंटू ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस व्हाट 1 डिवाइडेड बाय व्हाट अल्फा, ये बन जाएगा आपके पास क्या V2। ठीक है, इधर लिखा है ये। ठीक है, अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो देखिए अगर अपन को अभी V2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो अभी तो अपन आ चुके, फाइंड भी कर चुके अपन, थोड़ा ही बाकी है, तो ये आ जाएगा आपके पास V2 का वैल्यू विच इज इक्वल टू व्हाट V2 इंटू अल्फा प्लस
अल्फा का स्क्वायर इंटू वॉट वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू वॉट अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा इंटू वॉट अल्फा का स्क्वायर। यहाँ तक अपन आ चुके हैं भाई। और ये आपके पास क्या, दिस इज नथिंग बट वॉट v2 का वैल्यू, दिस इज नथिंग बट वॉट v2 का वैल्यू है। बात समझ में आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें एक बात अपन को देखने के लिए मिलेगी, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने इतना फाइंड क्यों किया? मैंने इसको इसके लिए इतना फाइंड किया क्योंकि मुझे क्या करना है, विथ इंटरशीट जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आ रहा है मेरी केबल के ऊपर और विदाउट इंटरशीट जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आ रहा है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। अब अगर आप उसमें देखोगे तो देखिए मैंने जब विदाउट इंटरशीट की बात की थी, विदाउट ग्रेडिंग या विदाउट इंटरशीट जो भी कहना हो सकते, कह सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि इंटरशीट उसमें प्लेस करने के बाद ही मुझे मतलब कि उन दोनों के बीच में मेटालिक इंटरशीट प्लेस करने के बाद ही मुझे क्या मिलने वाला है, ग्रेडिंग मिलने वाली। तो विदाउट ग्रेडिंग जो मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस मिल रहा था, वो कहाँ पे मिल रहा था मुझे, कंडक्टर के सरफेस पे। कहाँ पे मिल रहा था, कंडक्टर के सरफेस पे। इसके लिए अगर आप उसका एक्सप्रेशन देखोगे तो v/3r इंटू ln ऑफ अल्फा ऐसा है। बात समझ में आई? अगर ये ऐसा आ रहा है तो मुझे एक बात बोलेगा ना, मतलब ये क्या है ना, कंडक्टर के सरफेस पे मैंने देखा है। कहां पे देखा, कंडक्टर के सरफेस पे। और जो मैंने फाइंड किया है v माइनस v2, क्या बोल रहा हूं मैं, v माइनस v2 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस एट कंडक्टर सरफेस बट विथ ग्रेडिंग। किसके साथ है, ग्रेडिंग के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे बच्चे गलती कर देंगे, ठीक है। अगर आप उसको यहां तक लेके आए तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ऑन द कंडक्टर सरफेस विथ ग्रेडिंग। और ग्रेडिंग के साथ जाना है तो मुझे एक बात बोलेगा, आपको क्या देखना पड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में देखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके पहले अपन ने यहाँ पे देखिए इसके बारे में और कुछ डिस्कस किया होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा आपको यहाँ से कुछ, यहाँ से वहां से देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो आप देखिए कि बेटा यहाँ पे अपने लिखा था क्या, दिस वाज नथिंग बट व्हाट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद ग्रेडिंग Emax1, और Emax1 इज नथिंग बट व्हाट Emax इन केस ऑफ द व्हाट विदाउट ग्रेडिंग। अपन को इन दोनों को कंपेयर करना होगा, अपन को क्या करना होगा, इन दोनों को कंपेयर करना होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो V2 है, V2 का वैल्यू क्या करूंगा मैं, जो मैंने वहां पे फाइंड किया उसको क्या करूंगा मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूं। अब देखते हैं कि उसको प्लेस करने के बाद अपन को क्या मिलता है, ठीक है। तो देखिए भाई मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करता हूँ, V2 का वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, V2 का वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिलेगी या मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मिलेगा विथ ग्रेडिंग, वो कितना मिलेगा, V माइनस V2 अपॉन R इंटू वॉट ln ऑफ what R1 by R, ln ऑफ what R1 by R, ये मिलने वाला, ठीक है। R1 by R को मैं क्या लिख दूं, अपन ने लिखा था इसके पहले ln ऑफ R1 by R इज नथिंग बट व्हाट अल्फा। क्या लिख दूं मैं इसको, अल्फा लिख सकता हूं। तो ये लिखा जाएगा V माइनस V2 अपॉन R इंटू वॉट ln ऑफ अल्फा। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब इसमें क्या करूंगा मैं, देखिए V2 का एक्सप्रेशन प्लेस कर देता हूं, तो क्या बनेगा, V अपॉन R इंटू ln ऑफ अल्फा माइनस 1 by R इंटू 1 by what R इंटू ln ऑफ अल्फा इंटू यहाँ पे V2 का वैल्यू प्लेस करता हूँ। क्या मैं V2 का वैल्यू प्लेस करता हूँ, V2 का वैल्यू देखो ये वाला है, अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू व्हाट अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से ठीक है, लिख देता हूँ अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस व्हाट अल्फा का स्क्वायर। इस तरीके से आ रहा है भैया, ठीक है। ये आएगा आपके पास V अपॉन R इंटू ln ऑफ अल्फा माइनस V अपॉन R इंटू वट ln ऑफ अल्फा इंटू अल्फा प्लस वट अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। आई होप कि शायद आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है यार, बाकी मतलब बहुत ही बढ़िया है, सॉरी बहुत ही आसान चीज़ है, बस मैथमेटिक्स से बाकी कुछ नहीं। ये क्या आपके पास, ये Emax है, विथ Emax1 कह सकते हो चाहे तो। ये Emax1 इसके लिए क्योंकि विथ ग्रेडिंग जब अपन कर रहे हैं तो ग्रेडिंग में क्या ना मल्टीपल लेयर्स आ रहे हैं, तो जो पहला लेयर और जो कंडक्टर सरफेस है इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आ रहा है दैट इज ऑकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज हैविंग एक्सप्रेशन लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से क्या है ना, मैं उसका डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेता हूँ, इसका जो डिनोमिनेटर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो देखिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी V अपॉन R इंटू ln ऑफ अल्फा, V अपॉन R इंटू व्हाट ln ऑफ अल्फा, ये और ये दोनों में से कॉमन ले लिया। अगर दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये आएगा आपके पास अल्फा प्लस व्हाट अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस व्हाट अल्फा का स्क्वायर। इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए ये 1 प्लस अल्फा इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा V अपॉन व्हाट R इंटू ln ऑफ अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ से एक बात और देखने के लिए मिल रही होगी, क्या आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि अल्फा देखिए, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास क्या, Emax1 विथ ग्रेडिंग दिस इज इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू ln ऑफ अल्फा इंटू 1 प्लस व्हाट अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस व्हाट अल्फा का स्क्वायर। आई होप शायद आपको इतना समझ में होगा। तो एक बात आप यहाँ से देखिएगा, क्या जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को मिल रही है विथ
विथ ग्रेडिंग कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है ई मैक्स 1, और विदाउट ग्रेडिंग जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको ई मैक्स। अब इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं, आप देख के डायरेक्टली बोल सकते हैं यार इन दोनों में देखिए क्या बात कॉमन है, इन दोनों में v अपॉन आर इंटू वॉट ln ऑफ अल्फा कॉमन है, इसमें भी और उसमें भी देखिए, इसमें ये वाला कॉमन है और इसमें भी क्या है ना, ये वाला कॉमन है। अब क्या है, 1 प्लस अल्फा प्लस वॉट अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा प्लस वॉट अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाली टर्म आ रही है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब सवाल होगा क्या 3 ग्रेटर है किससे, 1 प्लस अल्फा प्लस स्क्वायर से, या छोटा है, ये सवाल होगा। देखिए अल्फा क्या है और ये बाकी चीजें क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा देखिए क्या आपके पास, अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज r1 अपॉन r विच इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1 विच इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन r1, ये है सॉरी r2, ठीक है। और आपको ये भी पता है, क्या पता है आपको तो ये भी पता है भाई, केबल के बारे में तो बहुत मतलब कि हजारों बार मैंने लिख दिया होगा इस लेक्चर को मैं पढ़ाते पढ़ाते, क्या r इज लेस देन r1 इज लेस देन r2 विच इज लेस देन r, ये भी आपको पता है। इसका मतलब क्या, अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट 1, अल्फा इज व्हाट ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसके लिए क्योंकि r1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, r2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन r1 एंड r इज ऑलवेज ग्रेटर देन r2। अगर इस टाइप का कंडीशन है तो मुझे एक बात बोलिए, अल्फा क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, किससे 1 से ज्यादा होगा। अगर अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, इफ अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इज नेवर इक्वल्स टू भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे एक बात बोलिएगा, ये जो पूरी की पूरी जो टर्म बनेगी 1 प्लस अल्फा प्लस व्हाट अल्फा स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू अल्फा का वैल्यू 1 प्लस 1.5 ले लो, सपोज 1.5 ले लिया, 1 प्लस 1.5 बन जाएगा 2.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 2.25 बन जाएगा, तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा आ रहा है, तो 4.25 आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बस इतना ही है कि जो अपन उसमें जो जिस काइंड ऑफ ग्रेडिंग अपन ने यहाँ पे अप्लाई की है, उस ग्रेडिंग की हेल्प से अपने क्या किया, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कंडक्टर के सरफेस पे आ रहा है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, विदाउट ग्रेडिंग के कंपैरिजन में। अगर विदाउट ग्रेडिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कंडक्टर के सरफेस पे कम आ रहा है, इसका मतलब क्या, अपन को जो मोटिव था, जो अपन को ऑब्जेक्टिव था ऑफ अप्लाइंग दी ग्रेडिंग, वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, वो या क्या होगा, फुलफिल हो गया। ये अपन का मेन मकसद था। अगर आप चाहे तो कितने नंबर से वो छोटा है, कितने नंबर से बड़ा है, कितने नंबर से कम है, अगर ये देखना है तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं भाई उन दोनों को कंपेयर। देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, बहुत ही आसान है यार। ई मैक्स विदाउट ग्रेडिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, विदाउट ग्रेडिंग, ग्रेड में उसको बोल रहा हूं, और क्या लिखता हूं मैं, ई मैक्स विथ ग्रेडिंग, दिस इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है भाई आपके पास, विदाउट ग्रेडिंग का वैल्यू है आपके पास v अपॉन 3r इंटू वॉट ln ऑफ अल्फा, इतना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ये ले लेंगे, तो ये कितना आएगा आपके पास, जब मैं उसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, v अपॉन, ये क्या आ रहा है आपके पास, v अपॉन r अल्फा, v अपॉन व्हाट r इंटू सॉरी ln ऑफ अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस व्हाट अल्फा का स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा है। तो देखिए अगर आप थोड़ा दोनों को और कंपेयर करोगे तो आपको एक बात देखने के लिए मिलेगी, क्या, v ln ऑफ अल्फा कैंसल, v अपॉन r ln ऑफ अल्फा, v अपॉन r ln ऑफ अल्फा, ये कैंसल। तो अगर आप उसको लिखोगे तो लिखा जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस व्हाट अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 3, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ई मैक्स विदाउट ग्रेडिंग डिवाइडेड बाय ई मैक्स, ये ई मैक्स डायरेक्टली वैसे कंडक्टर के सरफेस पे आने वाला, ठीक है, उसको मैं लेकिन 1 इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो लेयर्स के फॉर्म में आने वाला, इसके लिए मतलब कि हर एक लेयर के लिए अलग अलग ई मैक्स 1 ई मैक्स 2 ई मैक्स 3 ऐसा बदलेगा, तो ये बनेगा क्या, विथ ग्रेडिंग, और इन दोनों का जो रेशियो आएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, इतना आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये इन दोनों का मतलब कंपैरिजन करोगे तो ये इस तरीके से मिलेगा। और भी अगर आपको देखना हो तो कितने नंबर से कट हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, मतलब कितने नंबर से कम हो रहा है, अगर आपको चाहिए तो ई मैक्स 1 विथ ग्रेड, इसका वैल्यू पता कर लो। कैसे पता करोगे, ई मैक्स 1 विथ ग्रेड इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 इधर लेके आओ, उसको नीचे लेके आओ, तो वहां से अपन को पता चल जाएगा कि इतने नंबर से क्या होने वाला, कम होने वाला है। सो दिस वाज नथिंग बट व्हाट, दिस वाज नथिंग बट टोटल डिस्कशन अबाउट इंटरशीट ग्रेडिंग के रिगार्डिंग था। किसके रिगार्डिंग था, इंटरशीट ग्रेडिंग के रिगार्डिंग था। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको उनके लिए सॉल्व करना होगा भाई। बात समझ में आ गई, तो ये था पूरा के पूरा उसके रिगार्डिंग। अगर आपको उसने पूछा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 3 अलग अलग लेयर के लिए लिया था, 3 अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब मटेरियल नहीं कह सकता, 3 अलग अलग मैंने इंटरशीट के लिए, 3 मेटालिक इंटरशीट के लिए मैंने लिया था। सेम अगर सपोज उसने अगर 2 मेटालिक शीट के लिए लिया होता तो आप कैसे पता करते उसको,
सेम अगर आप उसको 2 के लिए लिया होता तो कैसे पता करते? देखिए मैं जल्दी जल्दी उसके लिए बता देता हूँ आपको। अगर 2 के लिए लिया होता तो देखिए मैं एकदम स्पीड में उसको पता कर रहा हूँ भाई, आपको उसको थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। तो ये बनेगा आपके पास 3 के लिए, मतलब सॉरी 2 के लिए, ठीक है। 2 इंटरशित आपने अगर यूज किए होंगे तो ये देखिए ये आएगा आपके पास क्या, ये आएगा आर, ये आएगा आपके पास R1, ये बनेगा आपके पास क्या, कैपिटल आर। ये क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा, ठीक है। इसको अगर मैंने बोल दिया ये V है, V, तो ये बन जाएगा V2 और ये बन जाएगा 0। बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से तो आपको क्या मिलेगा, V माइनस V2 अपॉन वाट, R, V माइनस V2 इंटू वाट ln ऑफ R1 बाय R इज इक्वल टू V2 माइनस 0 अपॉन वाट R1 इंटू ln ऑफ कैपिटल R बाय R1। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर है तो देखिए ये जो होगा, मैंने इसको बोला था R1 बाय R इज नथिंग बट अल्फा आर, अभी अल्फा इसमें देखिए इसका मतलब भी R अपॉन R1 भी अल्फा ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही लेयर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, R1 बाय R इज इक्वल टू R बाय R1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा। ये इसमें तुम बोलोगे सर इसमें तो R2 नहीं आया, अबे R2 इसके लिए नहीं आया क्योंकि इसमें 2 ही लेयर है, या 2 ही मेटालिक शीट में यूज करने वाला। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओनली 2 मेटालिक शीट आर गोइंग टू बी यूज्ड, ठीक है। इस तरीके से तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, V माइनस V2 अपॉन R इंटू व्हाट ln ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू व्हाट V2 अपॉन R1 इंटू व्हाट ln ऑफ अल्फा। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा V माइनस V2 अपॉन R इज इक्वल टू V2 अपॉन व्हाट R1। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, V2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V पता कर लेता हूँ। तो देखिए क्या आएगा, ये V2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V, तो ये बन जाएगा R1 इंटू व्हाट V माइनस V2, ठीक है, इक्वल्स टू R इंटू व्हाट V2। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा R इंटू व्हाट V माइनस R इंटू व्हाट V2 इज इक्वल्स टू R इंटू व्हाट V2। तो V2 का वैल्यू क्या बन जाएगा, V2 इज नथिंग बट R1 है ना, ये तो R1 आ जाएगा, ये आ जाएगा R1। तो ये बन जाएगा व्हाट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, नहीं, R इंटू वी डिवाइडेड बाय R प्लस R1। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, R को मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं R को कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बनेगा, V2 इज इक्वल टू आट, ये बनेगा R2 इंटू आट V डिवाइडेड बाय R को अगर मैंने कॉमन ले लिया, ये R2 नहीं R1 बनेगा ना, R1 1 प्लस वाट R1 बाई R, ठीक है। तो R1 बाई R को मैं अल्फा लिख देता हूँ, 1 प्लस R1 बाई R को भी अल्फा लिख देता हूँ। तो V2 का जो वैल्यू बनेगा मेरे पास, ये क्या बना, अल्फा इंटू V डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो आपको इसके पहले 3 लेयर के लिए भी अपन को अल्फा का सॉरी V2 का वैल्यू यही मिला था, 3 लेयर के लिए भी आपको V2 का वैल्यू क्या मिला था, यही मिला था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बस क्या करना आपको, जो वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला था Emax 1 के लिए, तो बस उस एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू पुट कर दो, आपको आराम से आंसर पता चल जाएगा। क्या था उसके लिए, अपने उसके लिए लिखा था कि Emax इज इक्वल्स टू 1, उसके लिए लिखा था कि V माइनस V2 अपॉन वाट R इंटू ln ऑफ R1 बाई R। आपको ऐसा लिख के दिया था मैंने, आपको याद आ रहा तो ठीक है, ऐसा लिख के दिया था। बस उसमें V2 का वैल्यू पुट कर दो, यही है भाई जो वहां पे सॉल्व किया था, वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या है, ये बनेगा आपके पास V माइनस अल्फा इंटू V डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट R इंटू R1 अपॉन R को मैं क्या लिख दूं, अल्फा लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा भाई ln ऑफ व्हाट अल्फा। इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू V डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू R इंटू व्हाट ln ऑफ अल्फा। इस तरीके से आ रहा है। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये क्या बनेगा आपके पास, Emax इज इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे तो ये बनेगा आपके पास V अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू R इंटू वाट ln ऑफ अल्फा इंटू R इंटू वाट ln ऑफ अल्फा। ये बन रहा है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से अगर आप उसको उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको बस इतना ही मिलेगा, उसके साथ अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको बस इतना ही मिलेगा कि 1 प्लस अल्फा से वो क्या कर रहा है, कम हो रहा है। और वहां पे अगर आप उसको देखोगे तो एक्चुअल उसमें देखोगे तो उसमें बस वो 2 आ जाएगा, 3 की जगह पे 2 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो यार मैंने कैसे किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो देखिए मैंने क्या किया था, R बाय R था ना यहाँ पे, बस इसमें क्या है तुम्हें R1 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा उसका, अल्फा इंटू वाट अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 की जगह पे 2 आ जाएगा, किधर गया, 3 की जगह पे 2 आ गया। फिर बस आप जब दोनों को कंपेयर करोगे तो जब आप उसका एक्सप्रेशन लोगे, उसका जब दोनों का ये डिवीजन लोगे तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 की जगह पे 2, अल्फा स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 3 थोड़ी ना लेयर है भाई, 2 ही लेयर है। तो इसके लिए इस तरीके से होगा। 4 लेयर आ जाएंगे तो उसके लिए क्या करोगे, बस उस तरीके से उसको थोड़ा मॉडिफाई करना, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे चीजें आपको अपने आप पता चल जाएगी। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आए आपसे बनना चाहिए। मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर आपको इसके बाद भी अगर कहीं पर डिफिकल्टी आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर मुझे इसमें डिफिकल्टी आ रही, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, देखिए भाई अब अपन बात करते हैं पावर लॉस इन द केबल के बारे में। हेडिंग डालेगा आप नेक्स्ट क्या, पावर लॉस इन द केबल, पावर लॉस
लॉस इन द केबल, ठीक है, इसको थोड़ा सेपरेट दिखा देगा, पावर लॉस, ठीक है। देखिए आपने ट्रांसफार्मर में या मैग्नेटिक मटेरियल्स में जब भी आप डिस्कस करते हो तो उसमें आपने एक बात पता करी होगी या डिस्कस क्या होगा, क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस, क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस। सेम चीज जब आप इनके सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो उसमें एक लॉस होता है जिसको आप बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस, उसको आप क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस देखिए क्या होता है और कैसे होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, डाई इलेक्ट्रिक लॉस, डाई इलेक्ट्रिक लॉस। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है ना, दिस इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ पावर लॉस विच ऑकर्स इन अ केबल, विच ऑकर्स इन व्हाट केबल, केबल में मतलब पेपर इंसुलेशन जो होता है ना, पेपर इंसुलेशन में लॉस ऑकर होता है, एंड इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच हैपन्स और विच डेवलप ड्यू टू द लीकेज करंट एंड द रिवर्सल ऑफ द एसी सप्लाई। बात समझ में आ रही, मैं उसको लिख देता हूं। डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस इज ए पावर लॉस, is a power loss which occurs in a which occurs in a paper insulation, which occurs in a what, paper insulation, paper insulation as a result of, as a result of an electric field develop, and which occurs as a result of an electric field develop, an electric field develop due to the leakage current, electric field develop due to the leakage current, due to the what, leakage current, leakage current, leakage current, leakage current and reversal of current in AC supply, and reversal of current in AC supply, and reversal of current in AC supply, in what, AC supply, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जब भी आप केबल के बारे में बात करते हो तो केबल में क्या होता है ना, बेसिकली केबल का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अपन क्या करते हैं उसको इस तरीके से दिखाते हैं, ये मेन कंडक्टर है, ठीक है, ये बड़ा ही कर दिया मैंने थोड़ा, ये सपोज आपके पास एक मेन ये है, इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये होता है आपके पास, ऐसा केबल आप ड्रॉ करते हैं, क्या है ना, ऐसे केबल आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से आपके पास केबल होती है, ठीक है, ये होता है केबल का रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस है, ये होता है कैपिटल आर, अपन ऐसा दिखाते हैं उसको, ठीक है, उसमें लेयर वगैरह इसकी होगी, ठीक है, बात उसके मुझे फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं। देखिए जब भी आप क्या है ना केबल का जब कोई रेजिस्टेंस वगैरह दिखाते हैं ना, या कंडक्टर है तो सपोज इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस इसके पहले मैंने डिस्कस किया है, वो अपन कैसे ना ऐसे सीरीज में दिखाते हैं, ठीक है, सीरीज में ये आर कंडक्टर होता है, ठीक है, और जो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ना उसको अपन ऐसे पैरेलल में दिखाते हैं, उसको कैसा ऐसा अपन पैरेलल में दिखाते हैं, ठीक है, ये बनेगा आर इंसुलेशन, ये क्या बनेगा आर इंसुलेशन, ठीक है, इस तरीके से अपन उसको दिखाते हैं भाई, बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से अपन उसको दिखाते हैं, और ये कंडक्टर के साथ नहीं, ये उसको अपन सरफेस के साथ दिखाते हैं उसको, कैसे ऐसे सरफेस के साथ अपन उसको ऐसे दिखाते हैं भाई, ठीक है, इस तरीके से अपन उसको दिखाते हैं, क्योंकि ये मेन कंडक्टर है और ये क्या उसका सरफेस है, मतलब क्या उसके ऊपर इंसुलेशन वगैरह लगा है वो है, ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस जो होता है ना, इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द व्हाट, लीकेज करंट जो फ्लो होगा ना आपके जो केबल है, केबल के सरफेस के ऊपर से जो लीकेज करंट फ्लो होगा ना, उसकी वजह से क्या होना, उसकी वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, उसकी वजह से क्या होगी, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण जो डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक, मतलब उसमें से थोड़ी थोड़ी करंट पास होना स्टार्ट कर देगा, जिसको थोड़ा ब्रेकडाउन होने के कगार पे होगा, तब उस तरीके के क्या ना थोड़ी थोड़ी करंट पास करना स्टार्ट कर देगा, और उसकी वजह से जो लॉसेस डेवलप होंगे उनको बोला जाएगा डाइलेक्ट्रिक लॉस, उनको क्या बोला जाएगा, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस बोला जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलेगा, अब ये कंडक्टर है, क्या बोल रहा हूं मैं, अब ये कंडक्टर है भाई, क्या है, एक कंडक्टर है, अब अगर ये कंडक्टर है
तो इसका एक अपना खुद का पोटेंशियल होगा, बात समझ में आ रही है। और ये क्या है बेसिकली, शीट नथिंग बट व्हाट, आउटर जो लेयर होगी वो लेयर, मतलब जो इंसुलेशन की आउटर लेयर होगी वो वाली लेयर। तो ये कंडक्टर है विच इज अप्लाइड पोटेंशियल एंड दिस वन इज व्हाट, अर्थ पोटेंशियल। तो ऑब्वियस इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा भाई, कैपेसिटेंस फॉर्म होने वाला है। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर दिख रहा है तो मुझे एक बात बोलिएगा कि जो केबल का जो मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस के लिए जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, क्या उस सर्किट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या उस सर्किट को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि उसमें रेजिस्टेंस और केबल का जो कैपेसिटी, मतलब केबल का जो लीकेज रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि लीकेज रेजिस्टेंस के थ्रू ही सरफेस पे करंट पास होने वाली, क्योंकि आप देख सकते हो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसके थ्रू ही सरफेस से करंट पास होगी। अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो ऑब्वियस है कि उसमें करंट पास होने का सवाल ही नहीं आएगा, तो उसको तुम मतलब अच्छी केबल बोल सकते हैं। और अगर केबल के सरफेस से करंट पास हो रहा है, इसका मतलब ब्रेकडाउन होने की कगार पे या ब्रेकडाउन थोड़ा सा हो गया, उसमें से लीकेज करंट पास होना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या है ना, आपके पास दो ये आएंगे भाई, क्या आएंगे, दो पैरेलल पाथ आएंगे। ये आएगा आपके पास आर इंसुलेशन और ये आएगा आपके पास, या तुम उसको आर लीकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर लीकेज भी बोल सकते हैं, आर इंसुलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आएगा आपके पास क्या, कैपेसिटेंस की करंट। ये क्या आएगा आपके पास, कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है। ये आएगा कैपेसिटेंस सी। यहाँ पे हो गया आपके पास अप्लाइड वोल्टेज वी। ये क्या हो गया आपके पास, अप्लाइड वोल्टेज वी। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, दैट वोल्टेज विल कम अक्रॉस दिस केबल, ठीक है। एक केबल का इक्विवेलेंट सर्किट होता है। क्या होता है, केबल का इक्विवेलेंट सर्किट। तो नीचे लिख दीजिएगा चाहे तो, फिगर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द व्हाट, केबल, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ केबल, ठीक है। इस तरीके से करंट आने वाली, यहां से जो करंट आएगा दिस विल बी व्हाट, सप्लाई करंट आई, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू व्हाट, दिस विल बी व्हाट, जे टाइम्स ऑफ आईसी। और ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, आई आर। ये क्या होने वाला, आई आर होने वाला। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, आई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ व्हाट, आई सी प्लस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ आई सी, जे टाइम्स ऑफ व्हाट, आई सी। इस तरीके से आएगी भाई वो करंट, सप्लाई करंट जो होगी वो, ठीक है, इस तरीके से आने वाली है। अब इसके बारे में अगर और कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखे तो देखिए, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूं तो देखिए, इसको अगर मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा या उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो फेजर डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, ये मैं उसको दिखा रहा हूं। देखिए मेरे पास जो करंट है कि जो रेजिस्टर में करंट जा रही है वो कैसे होगी, इन फेज होगी विद व्हाट, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज अगर सपोज मैं वोल्टेज को सपोज अगर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देता हूं, वोल्टेज इज व्हाट, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और करंट को, ठीक है, करंट को अपन बाद में दिखाएंगे क्योंकि करंट जो होगी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगी, आई आर और आई सी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगी। तो जो रेजिस्टर में जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी व्हाट, इट विल बी इन फेज विद व्हाट, वोल्टेज। तो करंट कौन से होगी, इन फेज विद व्हाट, वोल्टेज। तो वोल्टेज के फेज में होने वाली है करंट, ये होगी भाई आई आर करंट, ठीक है। उसके बाद जो कैपेसिटर में से करंट फ्लो होती है, कैसे करंट फ्लो होती है, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होती है, इट इज व्हाट, इट इज 90 डिग्री लीडिंग करंट। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी, प्योरली 90 डिग्री लीडिंग करंट आएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट आएगी भाई, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, आईसी आएगी। क्या आएगी, आईसी आएगी। अब आप मुझे बोलिएगा मेरे पास जो सप्लाई करंट होगी आई, जो करंट सप्लाई करंट होगी क्या, आई करंट जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों का क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगी भाई, दैट विल बी सप्लाई करंट। तो इन दोनों को जो रिजल्टेंट होगी, तो सपोज अगर मैं उसको नाम दे देता हूं कि सपोज अगर यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है। तो अगर सपोज मेरा रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है, उसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ व्हाट, आई। ये कि मैं, ये क्या है मेरे पास, आई है भाई, ठीक है, क्या होगा, आई होगा। अब मुझे एक बात बोलेगा, जो सप्लाई से करंट आ रही है, दैट करंट विच इज हैविंग एंगल फाई, विच इज हैविंग एंगल व्हाट, फाई, दैट करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, और इन दोनों के बीच का कॉस ऑफ फाई। तो वो क्या आ गया मेरे पास, पावर लॉस होगा। क्यों, क्योंकि पावर लॉस तो अपन को केबल में ही देखना, और केबल में पावर लॉस कहाँ पे हो सकता है, वोल्टेज, ये रेजिस्टर में हो सकता है पावर लॉस। क्या, क्योंकि उसी की वजह से तो करंट आ रही है भाई। पावर लॉस के लिए क्या होता है, आई स्क्वायर आर लिख लो, वी स्क्वायर बाय आर लिख लो, जो लिखना वो लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हो। तो मतलब क्या, जो करंट का एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, दैट एंगल इज नथिंग बट व्हाट, पावर फैक्टर एंगल फाई। दैट एंगल इज नथिंग बट व्हाट, पावर फैक्टर एंगल फाई। और जो एंगल बचेगा, जो भी कुछ होगा एंगल, एक्चुअली ये देखा जाए तो छोटा ही एंगल होगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट डेल, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, डेल होगा। बात समझ में आ रही है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब आप मुझे बोलेगा इसमें कुछ और चीज अगर मुझे लिखनी होगी तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं उसको, अगर मुझे लिखना होगा तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर आप देखो तो आई आर का वैल्यू क्या आएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, आई आर का वैल्यू क्या आएगा भाई, जो आई आर का वैल्यू आएगा मैं उसको लिख दूं क्या, आई आर इज नथिंग बट व्हाट। अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखिए तो देखिए, दिस इज वी 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 वी, ये जीरो यहाँ पे तो जीरो जीरो, वी वी बाई आर को लिख दूं मैं, आई आर इज नथिंग बट व्हाट, वी बाई आर, ठीक है। और आईसी को मैं क्या लिख दूं, आईसी को क्या लिख सकता हूं मैं, आईसी इज इक्वल्स टू व्हाट, वी बाई व्हाट, जे टाइम्स ऑफ एक्सी, वी बाई व्हाट माइनस जे टाइम्स ऑफ एक्सी नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आएगा व्हाट, वी बाई एक्सी विच इज नथिंग बट व्हाट, वी इंटू ओमेगा सी, वी इंटू व्हाट, ओमेगा सी, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, आईसी का मैग्नीट्यूड है। ये क्या, आईसी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, ठीक है।
इस तरीके से, ये आएगा आपके पास इस तरीके से। अब क्या है ना कि देखिए पावर को क्या लिखा जाएगा, पावर लॉस जो आएगा, पावर लॉस क्या आएगा आपके पास, पावर P इज इक्वल्स टू व्हाट, V इंटू आई इंटू व्हाट कॉस फाई, ये आएगा आपके पास क्या, पावर लॉस। ये क्या आएगा आपके पास, पावर लॉस आएगा। अब इसके अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, और एक को अलग अलग फॉर्मूले से अगर लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा लगे वैसे फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। देखिए यहाँ यही से आपके पास बहुत सारी चीजें आने वाली है। कैसे, देखिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये टोटल एंगल कितना आएगा, दिस टोटल एंगल विल बी अबाउट 90, और अगर मुझे लिखना होगा किसको, फाई को लिखना होगा, तो मैं फाई को अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई इज नथिंग बट व्हाट 90 माइनस डेल, ऐसा भी लिख सकता हूँ। फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, उसको 90 माइनस डेल लिख सकता हूँ, तो वहां पे लिख दो उसको, ये क्या बनेगा, V इंटू व्हाट आई इंटू व्हाट कॉस ऑफ 90 माइनस डेल इज नथिंग बट व्हाट, V इंटू आई इंटू व्हाट साइन डेल, कॉस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट व्हाट साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आई के बारे में लिख लेते हैं, आई को देखिए और किस तरीके से लिख सकते हैं, आई को किस तरीके से लिख सकते हैं, यही से लिखो आई को। सपोज अगर मुझे यहां से अगर सपोज कॉस डेल लिखना होता, या सपोज कॉस ऑफ 90 माइनस डेल लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, या साइन डेल लिखना होता, तो देखिए अगर मुझे लिखना होता क्या, अगर मुझे लिखना होता साइन ऑफ 90 माइनस डेल, तो ये क्या आता है आपके पास, ये आता है आपके पास अपोजिट साइड अपॉन व्हाट हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड क्या आपके पास IC, और हाइपोटेनस क्या आपके पास I, इस तरीके से। कॉस ऑफ 90 माइनस डेल इज नथिंग बट व्हाट साइन डेल, ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये कॉस डेल बनेगा, ये कॉस ऑफ 90 माइनस डेल ना, सॉरी साइन ऑफ 90 माइनस डेल कॉस डेल, ये बन जाएगा कॉस डेल विच इज इक्वल टू व्हाट IC अपॉन व्हाट I। तो I का वैल्यू मैं ले लूँ, I इज इक्वल टू व्हाट IC अपॉन कॉस ऑफ डेल, ऐसा लिख लूँ उसको मैं। आई का वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल लिया इस तरीके से, तो बस आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा, V इंटू व्हाट, आई का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा IC अपॉन व्हाट कॉस ऑफ डेल, IC अपॉन व्हाट कॉस ऑफ डेल इंटू व्हाट साइन डेल, कॉस डेल साइन डेल क्या हो जाएगा भाई, टैन डेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास V इंटू व्हाट IC इंटू व्हाट टैन डेल इंटू व्हाट टैन ऑफ डेल, ठीक है, ये बनेगा आपके पास क्या, पावर लॉस। अब बोलेंगे सर ये V इंटू IC इंटू टैन डेल, और कुछ हो सकता है कि इसको आसानी से सॉल्व करने वाला तरीका हो सकता है यार, देखिए क्या हो सकता है, IC को मैं क्या लिख दूं, उसका बस मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ पावर की बातचीत चल रही है, तो मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इज नथिंग बट व्हाट दिस, एंड दिस इज नथिंग बट V इंटू व्हाट ओमेगा C, तो IC की वैल्यू में क्या लिख दूं, ओमेगा C लिख दूं, IC की वैल्यू क्या लिख दूं भाई, ओमेगा C लिख दूं, V इंटू ओमेगा C, सॉरी, तो ये बनेगा V इंटू व्हाट, V इंटू ओमेगा C इंटू व्हाट टैन डेल इंटू व्हाट टैन डेल, इस तरीके से। तो ये क्या लिखा जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट V स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू व्हाट टैन डेल इंटू व्हाट टैन डेल, इस तरीके से लिखा जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट पावर लॉस P, दिस इज नथिंग बट व्हाट पावर लॉस P, दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर लॉस इन द व्हाट केबल। उसके बहुत सारे तरीके आप देखोगे तो मतलब इतने सारे तरीके से आप उसको फाइंड करोगे ना, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने उसको ऐसा पता किया, डायरेक्टली ऐसा लिख नहीं सकते थे क्या, V स्क्वायर बाय R, अरे भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, और बहुत अलग अलग तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, वो भी लिख लीजिएगा आप लोग, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही तरीका है भाई, इससे भी जा सकते हो, ये भी सही तरीका है, इससे भी जा सकते हो, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, और सर मुझे लगता है कि उसमें ऐसा तरीका हो सकता है कि पावर लॉस P इंटू द व्हाट केबल, तो ये आएगा आपके पास क्या, ये आएगा आपके पास V स्क्वायर, ये लेकिन ये V कैसा होगा, RMS होगा, ठीक है, तो ये बनेगा V RMS इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट भाई R, ये कौन सा R होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, या लीकेज रेजिस्टेंस, जो भी लिखा होगा उसने वहां पे, बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सर इसमें टैन डेल का कुछ तो एंगल आता है, तो उसने बोला कि क्या टेंजेंट क्या आएगा उसमें, केबल एंगल ऑफ टेंजेंट ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है, तो उसके बारे में अगर पूछेगा तो टैन डेल कैसे पता करोगे, डायरेक्टली यहाँ से टैन डेल भी पता कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। टैन डेल क्या होता है भाई, अपोजिट साइड अपॉन, अपॉन नहीं, अपॉन में क्या आएगा, हाँ सॉरी, अपोजिट साइड अपॉन व्हाट एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या आएगी, टैन डेल अगर लिखना होगा तो टैन डेल कैसे लिख सकते हो, टैन डेल इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या आएगी IC, और एडजेसेंट साइड क्या आएगी IR, तो ये आएगा आपके पास IC अपॉन व्हाट IR, ठीक है। अगर आप उसको इसको अगर सपोज इस एक्सप्रेशन को और अगर आप मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे ना, आप घूम फिर के वहीं पे यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आ सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है, आपको जो लिखना है आप उसको लिख सकते हो भाई, आपको जो लिखना है आप क्या कर सकते हो उससे लिख सकते हो, बात समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें देखिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है ना कि फिर मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्कशन हो जाएगा डायरेक्टली अगर उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि सेम क्वेश्चन इस बार 2021 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा था इलेक्ट्रिकल वालों को। तो देखिए उसमें क्या होगा ना कि अगर उसने पूछा अपन को केबल के बारे में, केबल में जो स्ट्रेस जो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो प्रोड्यूस होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ड्यू टू द लीकेज करंट, लीकेज करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी ना, उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की वजह से ही तो लॉस आएगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में वैसे लॉस होगा वो मतलब लीकेज करंट की वजह से होगा बेसिकली, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब देखिए मुझे एक बात बोलेगा, जैसे जैसे लीकेज करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, आपके पास जो करंट होगा, जो लीकेज करंट देखिए आई लीकेज की फ्लो होने की वजह से क्या होगा आपके पास,
हाई लीकेज की फ्लो होने की वजह से क्या होगा, पावर लॉस जो होगा आपके पास, वो पावर लॉस कैसे होगा, इंक्रीज होगा। पावर लॉस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा आपके पास, हीट इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज होगा बेटा, हीट इंक्रीज हो जाएगा। हीट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा आपके पास, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से और क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम हो सकता है तो फिर आई स्क्वायर करंट और भी बढ़ेगी। करंट और बढ़ने की वजह से मतलब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस और बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर द डाइलेक्ट्रिक लॉस विल इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक लॉस विल व्हाट, इंक्रीज। मैं उसको लिख देता हूं, क्या, ड्यू टू increase in temperature, due to increase in temperature and electric field intensity, and what, electric field intensity, dielectric loss will increase. Dielectric loss will increase। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और डायरेक्टली देखना कि बहुत सारे पीएसयूज में, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली सेम क्वेश्चन, मतलब सेम स्टेटमेंट की स्टेटमेंट आ जाएगी और आपको पूछेगा कि व्हेन विल डाइलेक्ट्रिक लॉस विल इंक्रीज और डिक्रीज, इन सब के बारे में अपन को पूछेगा। और ये सब चीजें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताए। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है? ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो भाई जब मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, पावर लॉस इन द केबल के बारे में, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पूरा पता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि जो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है।